Hello, my dear soul family. I don't know who is going to receive this video, who is going to listen to this video, but the one thing that I can tell you is that I have done so many counselings, and in this whole week, I have done so many relationship counseling specifically, and these relationships counselings are all about so many things. Yet there is this third party thing. No matter what kind of third party you have, and no matter what kind of betrayal that you have felt, as a human being, I could tell you, like, in this 2025 counseling, I can felt in this relationship counseling जो भी मैंने किया था, I could felt that there are so many new title that new generation is developing and doing so many things. Yet at the same time, the older one, those who are like into relationships, or they are into the relationships, and they are like settled enough, but still they are also searching for the new. So why exactly it is happening, and why exactly it is bothering to everybody? That's what I meant to find it, and that's what I meant to say in this video. Hope I can guide through it. Hope I can get this clarity, give you this clarity through divinity, through inspiration, whatever the divine is like guiding me, and to talk about it. So let me start with the thing called like betrayal. Okay, so whenever you are as a kid, you felt that betrayal thing. Whenever you are like a smaller kid, and you felt what exactly the betrayal is, what exactly is cheating is, when somebody you trust, when you trust someone like anything, and that someone can break that trust of yours, you felt it. और मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन इट दैट कि ये जो बीटल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाता है, जिससे आप एक तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और दूसरा जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो. इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर्स, और योर बेस्ट फ्रेंड्स, और गुड फ्रेंड्स. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन कि आप अगर इन सारे लोगों के ऊपर अगर इतना ट्रस्ट करते हो, एंड हाउ दे कैन बीट्रे यू. सो इन आर ह्यूमन जर्नी, जो भी हम इस अर्थ पे पूरा करने आए हैं, इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप अगर समझना चाहो, तो वी आर एग्जैक्टली लर्निंग दिस फीलिंग. Okay, we are here to learn and experience all kinds of emotions. So this emotions of pain is teaching you to trust your body, to trust your emotion, to have that gut feeling. When your gut is telling you that something is wrong, means something is wrong, something is happening or going out in a different direction, that means it is absolutely going into a different direction, है ना. और इस चीज़ को आपको पता कैसे चलेगा? You will really felt it in your body, and that's how you check your emotions. And emotions are the most important and most valuable things where you can find it out कि where exactly आपको कौन सी जगह पे इस आदमी से मिलने के बाद ड्रेन फील हो रहा है, या इस चीज़ को करने के बाद आपको सही नहीं लग रहा है, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक शेम, एक गिल्ट, और एक रिसेंटमेंट वाली फीलिंग या रिवेंज वाली फीलिंग है, इसकी वजह से आप ये चीज़ें कर रहे हो. ठीक है, नो मैटर यू आर इन टू अ थर्ड पार्टी, और नो मैटर you are the third party. I have done both the counselings. I have done like enough of, बहुत काउंसलिंग कर लिया इस हफ्ते में मैंने इस चीज़ के ऊपर. सो आई कुड वाउच फॉर इट कि नो मैटर व्हाट पोजीशन यू आर इनटू, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, बिकॉज आप कोई भी सिचुएशन में रहो, the most important part is you as a person. The most important and valuable thing is you as a person. So if you can't see and feel good about yourself that I did this thing, और अगर आपको ये करके कुछ बुरा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स कि देर इज समथिंग विच इज़ डेड इन साइड यू. एंड और अगर अब्यूसिव रिलेशनशिप में कोई है, और अगर उसके साथ आप जाके, सो देर इज़ अ कॉन्साइंस, यू नो, देर इज़ अ कॉन्साइंस दैट यू आर टेलिंग योर सेल्फ विद दिस थिंग. और आप एक प्रोबेबिलिटी सेट करते हो, आप 1 2 3 4 5 ऐसे आपका दिमाग ये सारी चीज़ें करता है. यू नो, आपको लगेगा कि आप ये नहीं करते हो, बट आपका दिमाग एग्जैक्टली टू साइड स्टोरी प्ले करता है, उसको जस्टिफाई करता है, फिर आप उस चीज़ को करते हो. So even if you have done something wrong, or even if you have experienced something wrong, you have to accept that it already has happened. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे साथ हो चुका है.
that acceptance will give you at least some kind of peace that yes, it has done to me. हाँ, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, yes. हाँ, मैंने उनके साथ बुरा किया है, yes. अब इसके बाद का क्या? इसके बाद एक फेज ऐसा आएगा जहाँ पे ईदर यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स कि वाई आई एम टेकिंग दोज काइंड ऑफ चॉइसेस वेयर आई कैन रूइन somebody's लाइफ, बिकॉज सो मेनी टाइम्स इट हैपन कि जब आप थर्ड पार्टी में आते हो देयर कुड बी चिल्ड्रन ऑल्सो इन्वॉल्व, or because of your wrong decisions, because of these two people's wrong decisions, because of the family choices also, because of the this thing, no matter what kind of things they are, that is there, बिकॉज ऑफ दैट वन चॉइस ना, अगर उसमें से दो आदमी हैं और एक आदमी ने भी उस चॉइस से डिफर कर दिया या थोड़ा सा पीछे हट गया, थोड़ा स्पेस दे दिया ना, तो दूसरे आदमी को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है उस चीज़ को क्लैरिटी के साथ उस स्पेस में आके सोचने के लिए कि एम आई डूइंग इट राइट और एम आई डूइंग इट रॉन्ग. और जैसे ही आपका ये कॉन्साइंस डेवलप होता है ना, आपको उस जर्नी में ना बार बार रिपीटेटिव पैटर्न में गेम खेलना नहीं पड़ेगा ना. आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी वेरी इन अ राइटफुली इन अ गाइडिंग मैनर कि आप अगर ये सोचो कि द कर्मा नेवर हिट्स बैक, so if you have never experienced PLR, if you have never gone to a past life regression therapy, if you have never experienced what exactly you can feel in your inner child feeling, आई कैन वाउच फॉर इट, आई कैन बेट यू ऑन इट कि आपके अंदर इतनी चीज़ें रहती है जिसको हीलिंग की ज़रूरत होती है, जिसको एक्चुअली मर्ज करने की ज़रूरत होती है, जिसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉन एक्सेप्टेंस, बिकॉज ऑफ दैट जजमेंटल, बिकॉज ऑफ दैट पेन दैट यू आर कैरिंग अराउंड, आप उसी चीज़ को ना बार बार रिपीटेटिव पैटर्न में करते हो और आप वहीं पे एक लूप में फंस जाते हो. एंड दैट लूप इज ऑल्सो गोइंग नॉट ओनली गोइंग टू हार्म यू, it is also going to harm all the people. If it is like a married family, सोचो एक बच्चे को भी आप हार्म कर रहे हो, उनकी पूरी फैमिली को भी हार्म कर रहे हो, और आप उसके साथ जो पार्टनरशिप आपने बिल्ड करने के लिए किया था उसको भी हार्म कर रहे हो. इट इज़ नॉट अबाउट दिस जर्नी, यू आर गोइंग टू पे इट फॉरवर्ड विद द अनदर लाइफ टाइम अगर आपके चॉइसेस कहीं ना कहीं गड़बड़ होते हैं. सो आई एम नॉट स्केयरिंग इट आउट, आई एम नॉट टेलिंग यू. बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे हाँ ये ज़िंदगी मिली है, हम एंजॉय करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, अभी का देखते हैं, बात का नहीं पता. येस, यू कैन डू इट. येस, यू वांटेड टू बी इन अ फ्लो स्टेट, आप उस जगह पे रहिए, बट विद अ कॉन्साइंस कि आप जो भी कर रहे हो उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है. आप एक रबर बैंड लेते हो और आप अगर उसको खींच देते हो और छोड़ देते हो, क्या वो उधर ही रुकेगा? नहीं रुकेगा ना, वो जाके फिर से आपको ही चोट पहुंचाएगा. सो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल रिएक्शन. अगर आज आप जो कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आज आप नहीं समझ रहे हो, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस कभी ना कभी आपको उसको देना ही है. द काइंड ऑफ चॉइसेस, द काइंड ऑफ respect, the kind of things that you are choosing for yourself and for everybody around it, आपको उस forgiveness वाले मोड पे आना ही पड़ेगा कि yes it has happened to me, yes I have done so many wrong things to myself and to everybody. हो सकता है ये जो भी गलत चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं मैंने कोई जगह पे, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने किया था एक लड़की का जिसको कोई घर नहीं मिल रहा था. she was very single and she was searching for a home, and that girl was very very beautiful, very sober, very nice. but जब हमने वो चीज़ किया था और हमको उसका ना सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, इट वॉज लाइक एक बहुत महीने से हम ट्राई कर रहे थे उसका. देन वी डिड दिस PLR एंड देन इन अ थेरेपी सेशन वी कम टू ए कंक्लूजन दैट लेट्स डू इट. और बिकॉज आई डोंट डू इट वेरी ऑफन. तो वहाँ पे हमने देखा कि शी वॉज ऑलवेज लाइक गिविंग लाइक ब्रेकिंग ऑल दिस एंड्स होम. तो जो चींटियों का घर होता है ना, शी वॉज ऑलवेज ब्रेकिंग इट. तो इसकी वजह से दैट कॉन्सिक्वेंसेज वॉज लाइक अफेक्टिंग हर दिस जर्नी की वो उस टाइम पे जो चीज़ें कर रही थी उसकी कॉन्सिक्वेंसेज अब इस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि वो जो भी घर में जाती थी उनको उस जगह पे जगह नहीं मिलता था. वो हमेशा उस घर से ना बाहर निकल जाती थी, वहाँ से उनको कोई तो बाहर निकाल देता था एंड शी कुड नॉट एबल टू स्टे देयर. सो थिंक अबाउट इट कि आपने कहाँ पे क्या किया था, एंड दैट द कर्मा दैट वाज लाइक पेइंग बैक टू यू लाइक दिस. सो इट्स ओके, वट एवर इज हैपनिंग विथ यू, इट्स ओके. नाउ कट द कॉर्ड्स, cut the energetic cords with all those people, cut all these soul contracts. अब आप अपने कर्मास को ठीक करना चालू. choices, make the right choices. if you are into a third party, why you are being that third party?
आपको क्यों स्टेप नहीं बनना है? आप थोड़े दिन के लिए अपने आप को अलग करके ये सोच के देखो कि लेट मी हैव माई स्पेस, लेट मी हैव अ वेरी गुड टाइम विथ माई सेल्फ, लेट मी हैव दैट थिंग कॉल्ड लाइक कि चलो इस आदमी को अगर डिसाइड करना है तो एक बार वो सही से डिसाइड करे और फिर मेरे पास आए। और अगर मान लीजिए कि आप दोनों साथ में हो और आप दोनों के साथ प्रॉब्लम चल रहा है और आप थर्ड पार्टी के अंदर चले गए हैं या आपके घर वाले कोई चले गए, तो रिमूव योर सेल्फ आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन फॉर सम टाइम एंड सी योर सेल्फ कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्सन इज डिजर्विंग, इफ दिस पर्सन इज like happy with you or this person is not happy with you, if this person is telling you that he or she loves that person or they love their family the most or they don't value you, they don't respect you, if it is like आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पे कम हो जाता है ना, उस जगह पे आप आपका एसेंस खत्म कर देते हो। if somebody needs you, if somebody is there for you ना, वो कुछ भी करके आपके साथ रहेगा, no matter how good you are, आपको अगर छोड़ के किसी को जाना है वो चला जाएगा। नो मैटर हाउ बैड यू आर, अगर किसी को आपके साथ रहना है वो कुछ भी करके रहेगा, बट दैट डजंट क्रिएट अ काइंड ऑफ इमोशंस जो कि नॉन हेल्दी अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस विथ बोथ ऑफ द थिंग्स की कहाँ पे मैं उनसे ज़्यादा प्यार भी करती हूँ, येट एट द सेम टाइम आई कांट टेक डिसरिस्पेक्ट। कि मान लीजिए अगर आपने उनको हर चीज़ बता दी, आपको उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ें ठीक है, येट दैट पर्सन इज ऑलवेज कम बैक टू यू इन अ ईगोइस्टिक मैनर, उसको सॉरी बोलना नहीं आता, उसको सॉरी बोलना ही नहीं है, इनफैक्ट ऐसे भी सोच सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। एंड इफ़ यू डू फील कि द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद इज हैविंग सम नार्सिसिस्टिक attributes, it's okay, but at the same time it will drain your energy also, right? but यहाँ पे आपको उनके गेम में क्यों खेलना है? if they wanted to play the game, you just remove yourself out from that game. I am not even interested to play this game anymore. Tell them. और उस जगह पे अपने आप को जब आप रिमूव कर देते हो उस गेम में, तो वो किसके साथ खेलेगा? नाउ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ दैट पर्सन रियली लव्स यू, इफ दैट पर्सन रियली थिंक्स दैट यू डिजर्व अ प्लेस इन देयर हार्ट, इन देयर होम, इन देयर स्पेस, इन देयर एनीथिंग, तो उस पर्सन को थोड़ा सोचने का टाइम दो। इफ़ इट इज़ लाइक कि इनफ है और मैं उस पर्सन के लिए कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, देन इट इज़ नॉट नॉन नेगोशिएबल, है ना। कुछ नेगोशिएबल्स होते हैं हमारे लिए और कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं। दिस नॉन नेगोशिएबल्स आर कि जहाँ पे अगर कोई मुझे हर टाइम पे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जस्ट टू शो दैट ईगो थिंग कि see, you can take this ego in a very beautiful manner also. Ego is very good. It is no, I'm not telling you that ego is bad. Ego आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता भी है, yet at the same time आपको ये भी तो समझना है ना कि where my person or where I'm like it's like kind of relations where I'm having, और जहाँ पे मैं सिर्फ गिविंग का काम करती हूँ और दिस पर्सन इज ओनली अबाउट द टेकिंग। इफ़ ही हैज़ द टाइम ही कैन कम, इफ़ ही हैज़ द टाइम ही कैन मैसेज, इफ़ ही हैज़ द टाइम वी मीट, इफ़ ही हैज़ द टाइम दिस। तो ऐसी चीज़ों में बैलेंस एनर्जी नहीं होता। यहाँ पे एक टाइम के बाद ना आप खुद एक रिसेंटमेंट डेवलप करोगे। जितना प्यार आपने पहले समझ के लिया था, उतना ही रिसेंटमेंट डेवलप हो जाएगा, बिकॉज आपका कप उस दिन खाली हो जाएगा जिस दिन आपका देने से ख़त्म हो जाओगे आप। और एक टाइम पे आएगा आपको कि लगेगा आई एम गिविंग 100%, 1000% एवरीथिंग, बट दिस पर्सन इज़ नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड 1%। वो बीमार था, आप खड़े हो, उसको कुछ हो रहा है, आपको पता है, उसके लाइफ में जो चीज़ें आप सब चीज़ें ठीक करना चाहते हो, उसके लिए आप कोई भी, उसके पास जॉब नहीं है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके साथ चल रहे हो। उसके पास पैसे नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी नहीं फ़र्क पड़ता, आप उसके साथ चल रहे हो। द वेरी टाइम यू नीड हिम और हर इन योर साइड, आपको जब ठीक नहीं लग रहा वो नहीं है, आपको जब कुछ नहीं है तो वो आपको डिग्रेड कर रहा है, डिवैल्यू कर रहा है। आप अगर कोई चीज़ पूछ रहे हो, कोई चीज़ बात कर रहे हो, यू हैव टू बी इन दैट एक्सेल ऑल द टाइम। एक्सेल्स का मतलब होता है कि आपको डर के उसके साथ अगर बात करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि this is not a kind of relations where this person is taking your vulnerability in a rightful manner। अगर vulnerability को accept नहीं कर पाओगे relationship में, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ honestly उस चीज़ को, जहाँ पे आप नीचे भी जाते हो तो भी मेरा, ऊपर भी आते हो तो भी मेरा, उस वाली फीलिंग में अगर नहीं आओगे, तो ये कैसा relationship है?
People are now naming it as a nanoship. I have done a counseling where somebody was telling me ki we were into a nanoship. What exactly is nanoship? Nanoship is all about you are just giving situationship, this ship, that ship, that ship. आप जितनी भी ship डाल के anchoring करना चालू करो कि this is the kind of relationship that I'm having, it is again going to take you towards a hell kind of ride. Why I'm telling you this? Because एक टाइम के बाद जब दोनों आदमी में से अच्छा अभी आप दोनों ने डिसाइड किया that I am into this relationship but we are not having any kind of emotional attachment. Is it possible? Is it? एक टाइम के बाद जब एक आदमी को इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, व्हेन यू आर लाइक टुगेदर, व्हेन वी आर हैविंग द फिजिकल रिलेशनशिप, मेंटल रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप बॉन्ड टुगेदर, और एक टाइम के बाद जब एक आदमी डेवलप कर लेगा ना, दूसरे आदमी को वहाँ पे उसका वो बोझ लगेगा. So be careful with whatever decisions that you are taking right now, and see exactly that what decisions you are taking right now is going to affect your mental health. It is going to drain your energy. It is going to affect you as a whole, you as a person. आपको उस टाइम से निकलने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ ये चीज़ें बार बार रिपीटेटिव पैटर्न में क्यों हो रहा है. और अगर ये सारे सिचुएशंस की वजह से आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है आपके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी में चले गए या थर्ड पार्टी आपके पास आ गया, इट डजेंट मैटर. आप दोनों गलत नहीं हो, द सिचुएशंस कुड बी रॉन्ग, बट येट एट द सेम टाइम व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव डन दिस थिंग एंड यू can move forward with it, you can break it, you can have a right thing, you can have a wrong thing also. wrong और right किसने डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया. आपका कॉन्सेंट डिसाइड करता है और आपको पता होता है कि दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट आई डोंट वांट. तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि what kind of things that I can provide, why I'm like having this relationship. See, आपका जब आप घर खरीदते हो, जब आप घर बनाते हो, एक घर जब आप पूरा बना लेते हो, या फिर आपके मम्मी पापा का घर देखो, जो बड़ा घर है, जो बंगलो टाइप घर है आपके पास, जो भी घर है, दैट हाउस इटसेल्फ, आप उसको जैसे ही जाते हो ना, तुरंत उसको तोड़ तोड़ के बना के, या फिर ऐसे नहीं बोलते हो हाँ हाँ हाय हाय मुझे ये घर आज नहीं पसंद आ रहा है, मैं तो आज के आज इस घर को चेंज कर दूंगा. अच्छा मुझे वो घर पसंद आया, चलो उस घर में. अच्छा वो घर भी रेडी कर दिया आपको रहने के लिए, थोड़े दिन के लिए आप जाके होटल में रह जाते हो, वो होटल पसंद आ गया आपको, और वहाँ पे आपको उसके साथ उस होटल में रहना है. सो थिंक इट इन अ हाइपोथेटिकल वे कि आपका जो घर है वो एक आदमी है और ये जो होटल रूम है ये भी एक आदमी है, ठीक है. सो बोथ ऑफ दिस लाइक इन अ हाइपोथेटिकल मैनर. आप ऐसे सोचो कि एनर्जेटिकली आप जब इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हो, नो बडी इन दिस होल वर्ल्ड इज परफेक्ट, नो बडी. तो आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हो, आप कैसे मान सकते हो कि वो आदमी हर तरीके से द काइंड ऑफ आइडिया ऑफ लव दैट यू आर हैविंग वो आदमी आपको पूरा करके देगा? No, it is not going to happen. You have to accept his or her flaws. You have to accept his or her weaknesses, strengths, everything. है ना. और वहाँ पे आप एक तामझाम में पहुँचते हो और फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि दिस इज माई हाउस इज ओके, एंड इट डजेंट मैटर कि आप वहाँ पे चले गए कुछ दिन के लिए, आप रह के आ गए, कुछ भी किया. मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. डोंट राइट इट डाउन कि हाँ हाँ हम जाते हैं घूमने रह के आते हैं. डोंट गिव मी दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल. इफ इट इज नॉट रेजोनेटिंग विथ यू, जस्ट रिमूव योर सेल्फ आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके, डोंट लिसन टू दिस वीडियो. बट जिनको भी ठीक करने का है ना ये चीज़, मैं सिर्फ उनको ये गाइड करना चाहती हूँ कि जैसे ही आप वहाँ पे गए, आपको पता चल रहा है दैट यू आर गोइंग टू हैव दिस फॉल आउट, यू आर गोइंग टू लाइक, आप उस जगह पे आपको ये वीकनेसेस है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो सकता, बट आप अगर अपने घर को रिनोवेट कर सकते हो तो वाई कांट यू रिनोवेट दिस रिलेशनशिप ऑल्सो. हाँ वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं, घर में पपड़ियाँ लग चुकी है, सीलन आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है. ओल्ड है ना, पुराना है ना, रिश्ता भी तो पुराना है ना घर. इतनी सारी चीज़ें, आप कलर क्यों करते हो दिवाली में? सो दैट यू विल फील दैट नयापन एक फील करो, सो दैट यू विल ऑल्सो फील. आप थोड़ी देर के लिए जो भी जा रहे हो उसको आप यहाँ पे इंटरप्रेट मत करो. आई एम टेलिंग यू अगेन बिकॉज आई एम पिकिंग अप सम ऑफ द एनर्जीज. पीपल कैन हैव दैट कैपेसिटी टू गो फॉरवर्ड विद इट कि हाँ ये तो हम करते हैं, हम जाते हैं, रहते हैं, बाहर आ जाते हैं, ऐसे. जस्ट
बी विद दिस थिंग कि मैं यहाँ पे गाइड ये करना चाहती हूँ कि आप जब ठीक रहोगे, आप जब अपने साथ ठीक रहोगे ना, आपके डिसीजंस में फर्म रहोगे, आपके लाइफ चॉइसेस में फर्म रहोगे, जो चीज़ें आपने लिया है, आप उन चीज़ों को देख के आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि येस आई हैव, गॉड हैज़ गिफ्टेड मी सो मच थिंग, गॉड हैज़ गिफ्टेड मी सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स। सब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू क्रिब अबाउट इट। Yes, I do can feel sometimes that grumpiness, that anger, that feeling of resentment, that grudges, that complaint, everything. ये इमोशंस है, आपको फील करना ही चाहिए। इसको सप्रेस करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। येट एट द सेम टाइम यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि ये सारी चीज़ें, अगर मेरा ये डिसीजन से बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही है, क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए? क्या इस डिसीजन के बाद ऐसा हो सकता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए? क्या एक दूसरे आदमी के आने के बाद क्या मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा? क्या जो चीज़ें मैंने सोचा है, क्या सब कुछ सही 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 एब्सोल्युटली सही होता है? नया रिलेशनशिप है, इसलिए आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। थोड़े दिन के बाद जब आप फिर से साथ में रहोगे, यू विल सी सम फ्लॉज, यू विल सी सम पिगमेंटेशन, यू विल सी समथिंग, एंड फिर वहाँ पे भी कहीं ना कहीं झड़प होगी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होगा, कहीं ना कहीं एक बार के लिए भी आपको वो थॉट आएगा कि वहाँ पे भी तो ये होता था, या वहाँ पे ये ज़्यादा बेटर था। So don't compare your energy with anybody else. Don't compare your relationship with anybody else's relationship. Don't compare your health with anybody's health के साथ. Don't compare your finances with anybody else's finances. Don't compare your job with anybody's job. आप जहाँ पे हो, जिस भी जगह पे हो, जिस भी चीज़ से आप काम कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हो, यू आर इन द बेस्ट पोजीशन। नाउ मेक इट श्योर कि आप इस जगह से आप उसको और बेस्टेस्ट बेस्ट कैसे कर सकते हो। सो दिस होल वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि मैंने बहुत सारे चीज़ें देखा, और इस कुछ महीने में, कुछ सालों में मैंने देखा कि आई कुड शेयर सो मेनी थिंग्स विद ऑल दोज पीपल, एंड सम पीपल अंडरस्टैंड इट, सम पीपल विद द थेरेपीज, विद द हीलिंग सेशंस, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ठीक किया है, और फिर उस ठीक की वजह से उनके रिलेशनशिप अच्छे हो गए। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू डिविनिटी कि एक्चुअली फैमिली है, एक्चुअली जो घर है वो अगर ठीक हो जाता है तो इट्स वेरी गुड। अगर नहीं ठीक हो पाता है तो भी आप हंसी खुशी उनको जाने दीजिए, दैट ब्लेसिंग्स, दैट फॉरगिवनेस, लेट गो इफ इट डोंट डिजर्व इट। बट आप जो चॉइस ले रहे हो ना, आप एक बार सोच के देखो, इफ़ योर चॉइसेस आर हर्टिंग एनीबडीज, इफ़ यू आर लाइक कमिटिंग टू समबडी, और आप उस कमिटमेंट को, आप उस प्रोमिस को कितनी बार ब्रेक कर रहे हो। अगर यही सेम चीज़ रिपीट में आपके साथ होता है तो आपको कैसा लगेगा? इफ़ यू आर लीविंग सब एवरीथिंग फॉर समबडी, दैट समबडी इज लीविंग यू, हाउ एग्जैक्टली यू आर फीलिंग? नाउ दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू फील? So this is a kind of awakening moment for some people, maybe, and this video could, I hope and I pray to divinity that this video reach to so many people, so that they can feel what exactly I wanted to guide them. I wanted you to slow down, I wanted you to write it down, I wanted you to have that clarity in your path, have that faith in your body, in your mind, in your soul, that you can do much better than this, whatever you are doing it. If you really felt something is wrong, और दूसरों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, बट आपका कंट्रोल आपके ऊपर है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. This video is for your situation. I can feel your pain. My heart goes to you. I can understand that sometimes you take some decisions which is right, which is not right. It's okay. It's okay. Yet at the same time, be careful what exactly you are doing, because so many times we knowingly unknowingly हम बहुत सारे लोगों को हर्ट करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम करते हैं, और बहुत सारे लोग हमें भी प्रॉब्लम करते हैं. सो डोंट गेट अटैच टू दिस कॉर्ड्स, एंड remove yourself out of this equation if it is not right for you. If you do know in your gut कि कुछ अगर ठीक हो सकता है उनके बीच या आपके बीच, आपके साथ, because there are 7 billion people, why you need a kind of man or women who is like into somewhere, और आप उसके साथ ही अटैच्ड हो, या फिर आप कोई भी सिचुएशन में हो, आपको क्यों दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ रही है? why you need some third wheel?
स्टेपनी है, गाड़ी में रखते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे लोग देंगे, आई डू नो, येट एट द सेम टाइम थिंक इट इन अ राइट मैनर। आपको बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल, आपको बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा जब आप अपने पास आ जाओगे और अपने साथ ये चीज़ों को फील करोगे दैट व्हाट डू आई नीड, हाउ कैन आई डू मच बेटर। तो होपफुली मैंने कोई चीज़ को जज नहीं किया है। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग दिस। आई एम जस्ट गाइडिंग यू टू टू चूज योर पाथ वाइजली। सी अदरवाइज हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट वाइज बनने के लिए, फुल ऑफ विजडम होने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कांटे उगने को टाइम नहीं लगता। जब गार्डन बनाते हो ना, तब आती है असली मेहनत। आपको वो खाद डालना पड़ता है, एनवायरनमेंट डालना पड़ता है, टाइम देखना पड़ता है, पौधे को धूप चाहिए, लाइट चाहिए, छाँव चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो वहाँ पे टाइम लगता है। सो इफ इट इज़ योर जर्नी, you are the one who can take care of yourself, you are the one who can understand it much better. Everybody's journey is different, everybody's life is different, everybody's choices are different. So be wise, and hope this helps to you. With this, I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you all.